नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस ऑनलाइन बुक लॉन्च इवेंट की मैं आपकी होस्ट पूजा धारीवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नीलम सक्सेना जी के मंच पर। ये एक ऐसा मंच है जहां हम हर बार अपने दर्शकों के लिए अलग अलग शहरों से कवियों को, लेखकों को एकत्रित कर उनकी खूबसूरत कविताओं को, उनके जज्बातों को एक महकते हुए गुलदस्ते में सजाकर पुस्तक के तौर पर आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष पेश करते हैं। ऐसा ही गुलदस्ता है हमारी आज की ये बुक। मैं चाहूंगी आप सभी अब हमारे दर्शकों को इसकी एक झलक दिखाएं। इस किताब में कविताओं के रूप में अनगिनत रिश्तों की कहानियां हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा कवर जिस पर ऊपर हमारी बुक का शीर्षक है कच्चे धागे, स्ट्रिंग्स ऑफ कनेक्शन बाय लिटरेरी वॉरियर ग्रुप। नीचे आए तो देखेंगे हमारी क्यूरेटर मैम नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे एडिटर्स डॉक्टर रेणु मिश्रा जी एंड आशा गौर जी। बीच में ये दो हाथ दिखेंगे आपको जो रिश्तों को दर्शाते हैं। इस तरह का हमारी एंथोलॉजी है जो जिसमें अनगिनत रिश्तों के नाजुक धागों के बारे में, नाजुक उनके रिश्तों के बारे में, विभिन्न उनके रूप के बारे में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग परिभाषाओं में रिश्तों के बारे में लिखा गया है। रेणु मैम, आशा मैम, आप सभी स्क्रीन पर है। आप सभी का स्वागत है। आशा गौर मैम, रेणु मैम, पद्मजा जी मैम, माया मैम, नीलम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करूं, रिश्तों के कई रूप हैं, कई परिभाषाएं हैं, और जब हमें इन सबको एक शब्द में, इन सबको एक शब्द में समझाना हो तो वो कैसे हो सकता है। कुदरत ने जीवन दिया तो बना आभार सा रिश्ता, माता पिता ने जन्म दिया तो बना प्यार दुलार सा रिश्ता, अपनों का साथ मिला तो बना त्योहार सा रिश्ता, मगर वहीं जब हाथ थामे खुदगर्जी के तो बना व्यापार सा रिश्ता। ये सारे रिश्तों का अनुभव मिलेगा आपको हमारी इस कविता में, इस एंथोलॉजी में। और इसकी शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रण इनवाइट करना चाहूंगी आशा जी को। आशा जी Gaur is a poetess, writer, translator and editor. Her poems have been appreciated and awarded at various levels. She has published a solo collection of poems, a novella, and a semi-autobiographical book of English stories. She has also contributed to several poetries and poetry anthologies. Asha ji was awarded with Radha Avdesh Samriti Sahitya Samman for the best poetry manuscript. In 2023 and 24, she received the Poet of the Year award by Ukiyoto Publishers and the Sahitya Ratna Samman from India Net Book, respectively. She has translated several articles, stories, 2 novels, and more than 40 comic books to date. Asha ji is also an artist and a certified dream therapist. आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा जी, अपनी कविता सुनाएं। Thank you for that wonderful introduction, Pooja ji. Before I read out my poem, I should tell you that editing poems in this book has been a beautiful journey. And there's a reason for that. If you get this book, there are around 97 poems, which is a big fiat. Out of these 97 poems, we have 24 poems which have been contributed by poets who write specifically in English, and we also have around 16 poets who write in both Hindi and English. So we have those poems as well.
It's a beautiful bouquet, as you mentioned, Poojaji. It's a beautiful bouquet of poems here. When you look at the book, the youngest poet is just 15, and she is from Bahrain. And apart from that, there is no age limit when we talk about poetry, when we talk about literature. It's the it's your mind, it's your thoughts, how it flows, the words, and that's the beauty. There is no age limit. When I see this, there are so many beautiful poems here, and I specifically want to mention that while editing these poems, I read and I understood different kinds of poetry as well. For instance, Hema Raviji has contributed a parallel. So honestly, before reading this, I didn't know what is a parallel, but now I know. So during this journey of editing these poems, I have also evolved as a poet. So I will not take a lot of your time and just read out a small thing that I wrote in my editorial. When Plato said, "At the touch of love, everyone becomes a poet," I'm sure he wanted to describe how difficult it is to describe intense feelings of affection, adoration, and respect in prose. Poetry makes even the pain and heartbreak sound beautiful. It aids the expression of unsaid emotions. This book is a collection of thousands of such relationships wrapped in words and rhymes by 60 poets, and it is absolutely beautiful. So, without taking a lot of time, I'll just read one of my poems from another anthology by LWG, which is called Vakt. So just give me some time. The poem is called Time Heals. Time never stops when the rivers swell and the mountains slide. It didn't stop when the oceans touched the sky and people died. But it stopped when you left without a word. My heart was broken and love felt cursed. Every moment felt stagnating. It had your smell and it was rotting. Like a stubborn stain on white linen, it refused to leave and felt suffocating. How could it be biased? Why was it always with you? Blinded to blinded to my pain and suffering, you waltzed through the life. I cried and you had no clue. Or maybe, or maybe you were just bored. You lacked any persistence and just turned your face and ignored. Now that you are no longer here, neither in flesh nor as a stain, there is no stench of stagnation, and I am no longer in pain. Time heals because it never stops. Though we may feel a few clogs, even then it was never biased, but different for you and me. I couldn't fake a smile with you, and you couldn't comfort me. With new people and fresh air came better love and care. We experience new things with time, and everything looks fair. Suddenly, the old starts fading, as if gradually moving away. Everything has a set life. Nothing is forever, nothing stays. Nothing ever escapes its grip. Each speck reaches its destiny, like the thousand trees and endless landscapes we leave behind on a journey. So that was my poem, and back to you with that, Pooja. Time actually heals, Asha ji. We have to give time, you see. जख्मों को भरने के लिए वक्त जरूर लगता है, मगर कभी ना कभी वो जख्म जरूर भर देता है. और वक्त, जैसे हम कहते हैं ना कि ये वक्त नहीं रहा तो वो भी नहीं रहता. अगर पेन है, खुशियां हैं, तो खुशियां भी हमेशा नहीं रहती. हमें पेन को भी वेलकम करना चाहिए. और
ऐसी ही जिंदगी चलती जाती है। बहुत खूब। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर रेणु मिश्रा जी को। Dr. Renu Mishra ji is author of 10 books and part of many anthologies, have been awarded with few awards and her work in literature. She also likes painting and gardening. बहुत ही छोटा सा परिचय है मैम आपका, बट मैं रेनू मैम को बहुत अरसे से जानती हूँ, आपके काम को मैंने बहुत करीब से देखा है। अब मैं आपको वेलकम करूंगी, आपका स्वागत है, आप आइए, अपनी कविता सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, और उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। रिश्ते इस विषय पर इस किताब में कविताएं लिखी गई हैं, जिसमें हिंदी में लिखी हुई कविताओं का मैंने संपादन किया, और इसके लिए मैं नीलम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझ पर विश्वास जगाया और मुझे इस काम को सौंपा। मुझे खुद भी एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती थी, मैंने अपनी ही किताबें एडिट की हैं, लेकिन नीलम ने कहा तो मैंने ये स्वीकार किया करना, और शायद 2 पिछली भी वक्त को भी मैंने एडिट किया था आशा के साथ, और इस किताब को भी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम। इस किताब का के पब्लिशर ऑथर्स प्रेस हैं। उन्होंने इस किताब को बहुत खूबसूरती से पब्लिश किया है, और आप इसकी देखेंगे फ़ॉन्ट और क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छी है। हिंदी में करीब 44 लोगों ने अपनी कविताएं दी, 44, दिस इज़ अ बिग नंबर। तो किसी ने 2 लिखी हैं, किसी ने 1 लिखी हैं, लेकिन सभी विविधता से भरी हुई हैं। कहने को रिश्ते एक बहुत छोटा-सा शब्द है, पर जितने रंग समेटे हैं और जितनी विविधताओं को लिए हुए हैं, शायद ही कोई शब्द होता होगा। माँ-बाप से, माँ बेटे से, माँ पुत्री से जो रिश्ता शुरू होता है, धीरे-धीरे संसार में पूरा व्याप्त हो जाता है। भाई-बहन, मौसा-मौसी, चाचा-चाची, नाना-नानी, दादा-दादी और जाने कितने रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते, कुछ अनकहे रिश्ते, कुछ अनसुने रिश्ते, और आज हम सब एक साथ एकत्रित हैं, ये भी एक हमारा रिश्ता ही है। तो रिश्ते कहा जाए तो संसार ही रिश्ते से चल रहा है, पूरा ताना-बाना जो संसार बना है, वो रिश्ते से ही बना है। और आगे जब हम ऊपर उठते हैं, आत्मा और इवॉल्व होती है, तो कहा जाता है कि ईश्वर से रिश्ता सबसे अच्छा होता है, सबसे खूबसूरत होता है। और उसके भी आगे जाते हैं आदि शंकराचार्य, जहाँ उन्होंने अद्वैत की सिद्धांत दिया, जहाँ की ईश्वर और जीव का भी कोई द्वैत नहीं रह जाता, वो भी कहते हैं कि एक ही है। तो पूरा आपका देखें तो लाइफ की जो जर्नी चलती है, जो ज़िंदगी का आधार है, वो एक रिश्ते से ही शुरुआत होता है, और कैसे जैसे-जैसे आत्मा इवॉल्व होती जाती है, वो समझता जाता है कि क्या डुअलिटी है, और क्या डुअलिटी के बाद वो भी विलीन हो जाता है, और कैसे वो अपने को विलीन करके ईश्वर में मोक्ष प्राप्त करती है। वो भी एक रिश्ता ही है, जो जो अपनी सार्थकता देता हुआ, एक जीवन को सार्थक बनाता हुआ, जीवन की यात्रा को पूर्ण करता हुआ, वहाँ तक पूर्णता को पहुँचता है। तो जितने तरीके के रिश्ते थे, उतनी तरीके की इसमें कविताएँ भी थीं। सबने अपने स्तर पर लिखा, जिसकी आत्मा जहाँ जिस स्तर पर थी, जिस रिश्ते को उसने खूबसूरत समझा, उस रिश्ते पर उन्होंने कविताएँ लिखी। और सभी कविताएँ एक-दूसरे से अलग और बहुत खूबसूरत हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन-सी अच्छी है, कौन-सी बुरी है। वैसे भी कविताओं को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस भाव में जो कविता लिखी गई, अगर आप उसी भाव में हैं, तो वो कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप उससे ऊपर-नीचे हैं, तो शायद वो आपसे इतना कनेक्ट ना कर पाए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इन कविताओं को पढ़कर, इनको एडिट करके एक बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे विचार जानने को मिले, और लगा कि कितने तरीके के रिश्ते हो सकते हैं। कि कुछ ने एकाकी पर भी लिखा, एक अकेलेपन पे, सोचिए रिश्ते के विषय पर एक अकेलेपन पे कविता लिखी गई है इसमें, और उसको भी हम लोगों ने स्थान दिया है। तो इससे अब बहुत समय ना लेते हुए, हमारे साथ बहुत सारे विशिष्ट वक्ता लोग मौजूद हैं जिनको हम सुनना चाहेंगे। मैं आपको अपनी कविता सुनाती हूँ, जो मैंने लिखी थी प्रकृति से रिश्ते के बारे में, प्रकृति और रिश्ते।
प्रकृति माँ जैसी लगती है, खूबसूरत और ममतामयी गर्माहट लिए अपने आंचल में समेट सारे दुख हर लेती है। प्रेम लुटाती, आश्रय में लेती, पोषित करती है। कभी सूर्य सी तेजस्वी, प्रखर, तेजवान पिता सी लगती है, जिसकी उपस्थिति हर गम, हर अंधकार हरने का दम रखती है। कभी तितली या बहती नदी सी चंचल, किसी सखी सी लगती है, जो हर बात सुनने और समझने को तत्पर रहती है। कभी वह ईश्वर सी लगती है, हर जगह मौजूद, जर्रे जर्रे में धड़कती, दीप्तिमान, जीवन, चौकस, सबकी खबर लेती, दंड देती और कभी क्षमा करती, दयालुता की प्रतिमूर्ति लगती। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। ये सच है कि जीवन से मरण तक हम अनगिनत रिश्ते बनाते हैं। कुछ रिश्तों को हम संजो के रख पाते हैं और कुछ रिश्ते इस सफर में टूट जाते हैं। जन्म लेते ही हमारा प्रकृति के साथ अपने आप ही रिश्ता जुड़ जाता है, सिर्फ हमारा ही नहीं, हर जीव जंतु का, नदी का, पहाड़ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कोई रिश्ते का मैं कुछ कह नहीं सकती, मगर नेचर, प्रकृति के साथ हमारा एक अटूट रिश्ता है। बहुत खूब रेणु जी। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी नीलम जी को। नीलम सिंह चंद्रा जी is the author of 79 books and holds 3 records. सक्सेना, नीलम सक्सेना। Neelam Saxena Chandra ji. Did I? Oh, I'm so sorry. What did I say? Sing. No problem. No problem. Neelam Saxena Chandra ji is the author of 79 books and hold 3 records in Limca Book of Records. She has been honored with Sohanlal Dwivedi Puraskar for children's literature by the Maharashtra State of Hindi Sahitya Academy, the Prem Chand Award by the Ministry of Railways, the Rabindranath Tagore International Poetry Award, the Freedom Award by Radio City of Lyrics, the Rural Lifetime Achievement Award, the Setu Award for Excellence in 2024, among many other accolades. In 2014, Forbes India recognized her as one of the 78 most popular authors in the country. आपका स्वागत है नीलम जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। और मैं क्यूरेटर होने के नाते हमारे एडिटर्स डॉक्टर रेणु मिश्रा, आशा को ढेर सारा प्यार देना चाहूँगी। और हमारे जो अतिथिगण हैं यहाँ पे, पद्मजा अयंगार पैडी, जिनको मैं पैडी माँ कहती हूँ, और माया जो कि मेरी बहुत पुरानी सहेली है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। आपने इस पुस्तक का फॉरवर्ड भी लिखा है। और पूजा पहली बार शायद होस्ट कर रही है इस पेज पे, तो आप बड़ी खूबसूरती से होस्ट कर रही हैं। आपका भी स्वागत। थैंक यू मैम। तो लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप सालों से कई एंथोलॉजीज करता रहा है। एक छोटी सी कोशिश की गई थी 2014-15 में, जिसमें बच्चों की एक एंथोलॉजी थी। मैंने एक लिंक डाली है इस पे मीन्स आज के हमारे कॉन्वर्सेशन में। तो ये हमारी जो है ये 12वीं एंथोलॉजी है। हमने एक एज अ बिगनर फॉर अ बिगनिंग, आशा के पंख, दिल के आईने से, एक शहर उम्मीद भरी, सह्याद्री इकोज, डेक्कन रेवरीज, शजर की छांव तले, द पोएट्स स्क्रिबल, गूंज ब्रेकिंग द शैकल्स, प्रकृति, वेयर आवर सोल्स रिसाइड, अयोध्या, राम एंड सीता रिटर्न, वक्त एक रहस्य, ये सब हमारी एंथोलॉजीज थी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे करके हम लोगों ने कोई ना कोई विषय चुना जिस पे हमने एंथोलॉजी सोची। तो उससे क्या होता है कि आदमी बंध भी जाता है कि हाँ, हमको इस एहसास पे लिखना है। और आप खूबसूरती देखिए हमारे सभी कवियों की, टॉपिक तो वही है, पर
कितने उसके रूप आए हैं, दुर्गा माता के भी 10 रूप थे, इस विषय पर ही पता नहीं कितने रूप निकल के आए हैं। और इतनी अच्छी एंथोलॉजी है कि इसको पढ़ो तो छोड़ने का मन नहीं करता, पुस्तक को रखने का मन नहीं करता। अलग अलग भावों को संजोए हुए ये पुस्तक है, और मैं उन सभी कवियों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब हमने टॉपिक रिश्ते ही क्यों चुना? हमने कई टॉपिक्स सोचे थे जब डॉक्टर रेनू और आशा और मैं बातें कर रहे थे। कई टॉपिक्स आए हमारे मन में, परंतु कुछ में लगता था कि दायरा बहुत छोटा है, इस विषय पे बहुत कविताएं नहीं निकलेंगी, या निकलेंगी तो सब एक सी लगेंगी। तो जो है, और कुछ पे हम ऑलरेडी एंथोलॉजी ऑलरेडी लिख चुके थे, तो धीरे धीरे करके हमारा मन रिश्ते पे ठहर गया, क्योंकि हम सबका भी तो आपस में रिश्ता है, और LWG तो रिश्तों की ही बात करता है। हम ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं, परंतु हम एक रेशम के धागे से ही तो जुड़े हुए हैं। अब ये रेशम के धागे कितने स्ट्रॉन्ग है कितने नहीं, ये तो वैसे वक्त ही बताएगा, परंतु 2011 से अगर हम में से कुछ लोग साथ हैं तो ये रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे ही, और आगे और स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो जहाँ तक कविताओं की बात है, मैंने एक अंग्रेजी और एक हिंदी की कविता इसमें लिखी है इसके लिए खास तौर पे, परंतु आज मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश की कविता का वाचन करूँ, क्योंकि ये मैंने उस विषय पे लिखी है जब हमको कुछ रिश्ते बोझ की तरह ढोने पड़ते हैं। तो ये थोड़ी मेटाफोरिक कविता है, तो इसमें आपको ऐसे लगेगा कि शायद ये शहर के बारे में है, परंतु ये उन रिश्तों के बारे में है जिनको हम अक्सर ढोते रहते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे मीन्स हम में से कुछ लोग बहुत लकी हैं जो कि अपना रिलेशनशिप चूज कर सकते हैं, परंतु हर आदमी तो नहीं कर सकता, हर औरत तो नहीं कर सकती। तो ये उन रिश्तों के बारे में है। Relationships of burden. You realize that the city is a Casanova that trying to impress everyone while hiding its dirty secrets. You are hard to impress. You can see through her Poirot's eyes. You know well about its muddled, bemired, and disarrayed character. And yet, sadly, you get impressed. You finally embrace the city, but it wriggles out of your arms too soon with giggles and laughter. It has many die-hard fans, a few clasping lovers too. It realizes that you shall look for promises, loyalty, and love. It mocks, go away. You stare at it in shock and disbelief. You become a disenchanted partner in love. You've got to remain like an unrequited lover, married to the Casanova for some unknown fear. Many relationships have to carry on with bags of burden or pick and shovel togetherness. Gratefully, you have to spend only a few months. Thank you. Hope everybody will read this book. It's available on Amazon and on the website of Authors Press. So all the best to all of us for many more anthologies in future. Beautiful, Neelam ji. It's a fact that sometimes we give too much and get nothing in return. And then one fine day, such relations, they become a burden. It's a fact and we cannot ignore that. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी पद्मजा अयंगर मैम को, जिन्हें हम प्यार से पैडी मैम भी कहते हैं. Paddy ma'am has 2 poetry collections in her credit, Pen and Chance and Pen and Chance Again. She has edited 6 international multilingual poetry anthologies, 4 English poetry anthologies, of which Amravati Poetic Prism 2016 to 2019 have been recognized by the Limca Book of Records
as the poetry anthology in most languages. Peri ma'am was honored with Doctor of Literature at the 43rd World Congress of Poetry 2024 and Vishisht Sahitya Samman at the recently concluded WLG Bhasha and Beyond Litfest 3.0 sorry. आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम मुझे आई एम सो सॉरी करंट नहीं है और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड completely understand, no worries. Yeah. And you're doing a great job, Pooja. You're doing an excellent job, and doesn't look like your first one. You're doing such a great job. Thank you so much. Congratulations. You're most welcome, Paddy ma'am. स्वागत है आपका. Thank you. So a pleasant good evening from the Pearl City of Hyderabad to my fellow panelists and all those who are viewing this meet. And first of all, I'd like to thank the curator of this bilingual poetry anthology, the awesomely multifaceted, and my dear Neelam Saxena, and the two very sincere and committed editors, my dear Dr. Renu Mishra and my dear Dr. Asha Singh Gaur, for inviting me to not only contribute my poem in Hindi and English in the anthology, comprising some 32 superbly penned English poems on the theme of relationship, but also, asking me to inviting me to write an editorial for this anthology. I feel truly honored to have done this. We have myriad relationships in our life, each unique, each impacting our life in some way, most times positively and sometimes not so positively. In fact, a few times not so positively. I won't say sometimes, because sometimes makes it much more. Each of our relationships, I think, teaches us empathy, care, concern, and above all, understanding. This poetry anthology, Kache Dhage, Strings of Connection, with 76 poems, is a celebration of our relationships. It's a celebration of what we enjoy with each other, what we enjoy with our family and friends. And though kache, yet strong strings, forging or tying together strong relationships. Each poem in this bilingual anthology superbly showcases the sentiment of relationships very beautifully. I now have great pleasure in reading my own English poem, which is titled Some Relationships, which is somewhat like Neelam's, a realistic take on life and relationships. So I'll be reading it from this anthology, of which I'm very proud. So the title is Some Relationships. Not a step fully in, not a step fully out, nor a midway path, often a tightrope walk. Speak if spoken to, each word weighed, carefully considered, eye contacts avoided, smiles are out, lips are pursed, better zipped, eyes downcast, mind scared to think, heart shudders to beat, eyes afraid to see, tongue tied in knots, shadowy existence, living out a curse, moving in mimes, communication tears, tension mounts, blood pressure shoots, pulse rate races, silence deafens. Pressure cooker whistles and lets out some steam. Thank you. Beautiful. Is it, Paddy ma'am, is it that we are talking about the discomfort, the uncertainty, and lack of understanding in relationships in your poetry? Yes, and very often, especially we see in many marriages, especially we see that the relationship is lived out of compulsion sometimes. Not often out of, the compulsions are of many kinds. More often it's a societal pressure, more often a family pressure, and above all, the concern for children. So, different kinds of relationships come with their own pleasures and their own pressures also.
So Absolutely. I have tried to, keep it not too deep, not gone too deep into it, but I thought these relationships also exist. Right. Parima, we could feel the pressure. So Thank you. it has just done all the justice to the topic. Thank you. अब मैं आगे बढ़ते हुए इनवाइट करना चाहूंगी माया मैम को, माया जी को, माया जाजू महेश्वरी जी. Maya ji is a distinguished IRS officer currently serving as Principal Commissioner of Income Tax, Mumbai. She is a marathon runner and also practices Madhubani and Gond paintings. Maya ji's poems are a mirror of society, nature, and human sentiments. Her work is a remarkable blend of depth, simplicity, and inspiration. She continues to write poetry despite her busy administrative life. In 2024, she was awarded the Finance Minister's Certificate of Appreciation for her outstanding contribution to the Hindi literary field. In this context, she has compiled a collection of poems, विचारों की लड़ी. आपका बहुत बहुत स्वागत है माया जी. Thank you Pooja for the wonderful introduction and आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. And खासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड नीलम का, जिसने मुझे जब ये एंथोलॉजी का संग्रह बन रहा था तब नीलम ने मुझसे कहा कि क्या मैं इसकी प्रस्तावना लिखूंगी. तो मैंने जब पूछा टॉपिक क्या है तो नीलम ने बताया रिश्ते. तो यह विषय मुझे बहुत दिल के करीब है और मेरी कई कविताएं भी रिश्तों पर आधारित है. तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे इस संग्रह की प्रस्तावना लिखने का अवसर मिला. और जब मैंने कई कवियों की कविताएं पढ़ी तो सबसे पहले सबसे ऊपर यदि हम रिश्तों की बात करें तो सबके जहन में एक ही नाम आता है और मुझे लगता है हर कोई गेस कर लेगा, माँ का. क्योंकि माँ एक ऐसा रिश्ता है जो जन्म से लेकर अंत तक किसी भी समय इसमें बदलाव नहीं आता है और बाकी सब रिश्तों में थोड़ा थोड़ा बदलाव उम्र के साथ साथ आता जाता है. यदि हम कोई भी रिश्ता लें, भाई बहन का, बच्चों का, पति पत्नी का, परंतु माँ एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ साथ और भी प्रगाढ़ होता जाता है. तो इस माँ के रिश्ते पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी और कईयों ने बाकी सारे रिश्ते, भाई बहन, सभी कविताओं का संग्रह था. और कई कवियों ने कुछ अपने दुख भरे एहसास भी साझा किए कि कैसे रिश्ते कब एक बोझ बन जाते हैं, कब हमें उन्हें ढोना पड़ता है. ये बहुत ही एक नकारात्मक विचार है, परंतु फिर भी ये एक जीवन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि कई बार रिश्तों को ढोने की नौबत भी आती है. और कई बार हमने ये महसूस किया है कि रिश्ते जो हैं समय समय पर अलग अलग रूप लेते हैं. कुछ रिश्ते जो किसी समय बहुत ज़्यादा बलवान थे और कभी समय आकर हमें उन्हीं रिश्तों की जो एक भावनात्मक पहचान थी वो कहीं कहीं मिटती जाती है. तो यही सब इन कविताओं का संग्रह था और इसे ही मैंने अपनी प्रस्तावना में आप लोगों से साझा किया था. और अंत में एक संदेश था कि रिश्ते भले ही कितने भी नकारात्मक हों, ये एक रिश्तों के बिना जीवन का अनुभव बिल्कुल व्यर्थ है. रिश्ते हमारे लिए जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं उतना शायद जीवन का कोई भी और सच्चाई नहीं है. तो हमें इन रिश्तों को सहेजना है, हर धूप गर्मी से उन्हें बचाना है. थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सहानुभूति, कुछ जज्बात और कुछ नज़ाकत, बस इन्हीं सब से हमें इन रिश्तों को वक्त के थपेड़ों से सही सलामत निकालना है. तो आप सबकी इजाज़त से मैंने इसमें एक कविता कंट्रीब्यूट की थी. तो मैं कविता को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी. इस कविता का शीर्षक भी मैंने रिश्ते ही दिया था. रिश्ते जो कभी लगते दिल के बहुत पास, कभी लगा जाते ना मिटने वाले खाओ. रिश्ते कभी नहीं चलता इनके बिना काम, कभी कर दे ये जीना भी हराम. रिश्ते कभी लगता ये चले जन्म जन्मांतर, कभी दो पल का साथ भी दूभर. रिश्ते कभी लगता इनसे बढ़कर ना कोई करीबी, कभी बन जाए
ये पराये और अजनबी। रिश्ते कभी बन जाते ये आंखों के तारे, कभी चलाए दिल पे तीर कई सारे। रिश्ते कभी बन जाते माया मोह और ममता, कभी दिखाए विरक्ति और मोक्ष का रास्ता। कभी दिखाए विरक्ति और मोक्ष का रास्ता। और मुझे लगता है जब ये विरक्ति आती है तभी हम शायद कविता लिखने का एक एहसास हमारे मन में जाता है। और बहुत सारे कवि भी मुझसे एग्री करेंगे कि यही जब मन में ये भावना आती है तो इससे बहुत सारी नई नई कविताओं का जन्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये प्रस्तावना लिखने देने के लिए और अपनी कविता कंट्रीब्यूट करने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल सही माया जी, बिल्कुल सही। कभी कभी रिश्ते समझ के परे हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है इन रिश्तों को समझना, मगर सच्चाई तो ये है कि यही रिश्ते हमारी ताकत भी बनते हैं और यही रिश्ते कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी। तो आप सबके बाद अब बारी है मेरी। मैं एक छोटी सी कविता आप लोग के सामने पेश करना चाहूँगी। इससे पहले पूजा, मैं सबको आपका भी छोटा सा एक परिचय दे दूं। तो हम भी बेताब हैं आपकी कविता सुनने के लिए। पूजा धारीवाल एक कवियत्री और चित्रकार हैं और इनका मानना है कि रचनात्मकता इंसान को प्रेरित रखती है। बिल्कुल सही। उनकी कविताएं कई संकलनों में प्रकाशित हुई हैं। उनकी कई ऑनलाइन और ऑफलाइन कवि सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी रही है। इन्हें नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA मुंबई में अपनी कविताएं सुनाने का सम्मान मिला है। वह नागपुर महाराष्ट्र से हैं और LWG की बहुत ही सक्रिय मेंबर भी हैं। पूजा जी, थैंक यू सो मच। आशा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। जब रिश्ते टूटते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अंदर से टूटते हैं, और मेरी ये कविता इन्हीं टूटते रिश्तों की कहानी है। ये रिश्ते ना जाने क्यों आज अजनबी से लग रहे हैं, ये रिश्ते अनजानों सी नजर रखते हैं, ना जाने बातों में आ गए किसके। सांसों की कुर्बानी दी स्वाभिमान ने कई बार इन रिश्तों की उम्र बढ़ाने में। प्यार से इन्हें सजाया सवारा, निकल गई कई दिवालियां इन्हें मुझे अपना कहलाने में। 2 पल, बस 2 पल लगे इन्हें मुझे सौतेला बनाने में। बीज बोया था कभी रिश्तों का विश्वास की मिट्टी में, इस उम्मीद से कि रक्षा कवच बन खड़ा होगा रिश्तों का एक दरख्त मौसमों की सख्ती में। अभी वक्त आया ही था रिश्तों की शीतल छांव में सुकून से दम भरने का, कि तभी बिखर गई सारी टहनियां आक्रोश की आंधी में। आज कश्मकश में है ये जिंदगी कि क्यों इन रिश्तों की कोई पक्की उम्र नहीं होती। ये क्यों हालातों को नजरबंद रखते हैं, इनकी क्यों अपनों को परखने की नजर नहीं होती। किस और ले जाती है ये जिंदगी रिश्तों को, किस और ले जाती है ये जिंदगी रिश्तों को। ये हालात नहीं अपनों का साथ बयां करता है। ये बनते बिगड़ते हालात असल में रिश्तों की ताकत, रिश्तों की औकात को बयां करता है। न जाने क्यों आज अजनबी से लग रहे हैं ये रिश्ते, अनजानों सी नजर रखते हैं, न जाने बातों में आ गए किसके, न जाने बातों में आ गए किसके। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत कविता। थैंक यू। दिल को छू जाने वाली कविताएं सुनते सुनते समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई हमारे दर्शक हमसे जुड़ते रहे। मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि इवेंट के खत्म होते ही आप फेसबुक पर जाकर जो हमारे दर्शकों ने हमारे लिए प्यारे प्यारे मैसेजेस छोड़े हैं उन सब का रिप्लाई जरूर दें। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंत पर पहुंच चुके हैं। जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से। जब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और रिश्ते बनाते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।